محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آج کے اس جشن کی تمام تر خوشیوں کا صدقہ، شبان المعظم کی آج کی شب کا صدقہ، ظہور نور مصطفیٰ کا صدقہ، میرا مالک بانیان جشن، حاضرین جشن، سامعین و ناظرین جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سادات و غیر سادات جتنے بھی تشریف فرما ہیں، تمام کو سوائے غم مظلوم کربلا کے دنیا کا کوئی غم نہ دکھائے. میرا مالک محبت آل محمد، معرفت آل محمد کے ساتھ نصیب فرمائے، انتظار حجت نصیب فرمائے، دیدار حجت نصیب فرمائے، اور مالک کی نصرت اور مالک کے قدموں میں شہادت کی موت عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کو سرکار حضرت شہزادہ علی اکبر کے نزول کی اس شب پہ ہدیہ تبریک، ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ میرا مالک ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے. آج کی یہ شب وہ مقدس ترین شب ہے جس میں رسول اللہ کے گھر میں آج ایسی خوشی ہے کہ آج محمد کے گھر میں پھر محمد آ رہے ہیں. آج علی کے گھر میں پھر علی آ رہے ہیں. شہزادہ علی اکبر کا نزول مصطفی گھر میں صحن عصمت میں آج کچھ اس انداز سے ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے حسین و منی کی تفسیر تو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی، لیکن آج انا من الحسین بن کے علی اکبر تشریف لا رہے ہیں. کیا بات ہے. بلکہ میں اس کو اگر بہتر الفاظ میں تبدیل کروں تو اس سے بہتر جملہ یہ ہوگا کہ آج علی کے گھر میں پھر محمد آ رہے ہیں. آج وجہ اللہ کے گھر میں پھر وجہ اللہ آ رہے ہیں. سرکار شہزادہ علی اکبر کا آل محمد کے گھر میں نزول، اور اس شہزادے کا نام نامی اسم گرامی جب مختص علی ہوا، اس کے لیے ایک توجیہ پیش کی جاتی ہے، اور وہ یہ توجیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بابا سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. میں اس سوال کو جو یہ توجیہ پیش کرتے ہیں ان کی طرف پلٹاتے ہوئے سوال کروں گا کہ کیا مولا حضرت امام حسن کو اپنے بابا سے پیار نہیں تھا؟ تو آخر حکمت اور راز کیا ہے کہ امام حسین ہی کا ہر بیٹا علی کیوں ہے؟ آخر اس میں اصرار کیا ہے کہ کریم کربلا کا ہر شہزادہ علی کیوں ہے؟
ایک علی زین العابدین ہیں، ایک علی اکبر ہیں، ایک علی اصغر ہیں، آخر کریم کربلا کے گھر میں بار بار علی کی آمد کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی جو راز عارفین نے پیش کیا وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ پرکار مشیت نے صرف ایک علی بنایا، اللہ کی مشیت میں ایک علی بنا تھا، اور اللہ نے ایسا کبریائی معجزہ بخشا ہے حسین ابن علی کو کہ اس کی پرکار مشیت نے صرف ایک علی بنایا تھا، لیکن حسین علیہ السلام کے پاس وہ کمال ہے کہ یہ اپنے گھر میں بار بار علی بنا رہا ہے۔ سرکار زین العابدین علی بن کے آئے، سرکار علی اکبر علی بن کے آئے، سرکار علی اصغر علی بن کے آئے، یہ تلسم صرف حسین ابن علی کے پاس تھا کہ حسین ابن علی کے پاس ہر بیٹا علی بن کے آ رہا ہے۔ بلکہ امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث میں یہاں ضرور نقل کرنا چاہوں گا کہ کریم کربلا سے سوال کیا گیا تھا ایک صحابی کی طرف سے کہ مولا آپ نے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا؟ فرمایا میرے 1000 بھی بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ فرمایا کیا بابا کی محبت کی وجہ سے ہے؟ فرمایا بابا سے محبت تو حسین کے خون کے اندر رچی ہوئی ہے، بابا سے محبت تو حسین پہ واجب ہے، کیونکہ علی میرے باپ نہیں، علی میرے ولی بھی ہیں، علی میرے امام بھی ہیں، لیکن میں ہر بیٹے کا نام علی رکھ کے دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابو طالب نے صرف ایک علی پالا تھا، حسین کئی علی پال رہا۔ سرکار حضرت ابو طالب کے گھر میں تو صرف ایک علی تھا، اللہ کے گھر میں تو ایک علی آیا تھا، لیکن حسین علیہ السلام کا صحن عصمت وہ وسیع ترین صحن ہے جس میں ایک نہیں، جس میں بار بار علی ہے۔ اور پھر اس شہزادے کو ایک لقب دیا جاتا ہے شبیہ پیغمبر۔ آپ کے ساتھ میرا ایک مسلسل 6 ماہ کے ساتھ ایک آواز کا رشتہ تو باہر صورت موجود ہے، اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ اتنا یقین ہے کہ آپ کے ہاں لفظ آیا نہیں ہوتا، میں لفظ کو دہرانے لگا ہوں۔ اس شہزادے کو کہا جاتا ہے شبیہ پیغمبر، جبکہ علی المرتضیٰ رسول کے ساتھ ساری زندگی رہے۔ علی نفس پیغمبر بھی ہے، علی عکس پیغمبر بھی ہے، لیکن علی کے ساتھ شبیہ پیغمبر نہیں آیا۔ یعنی کہ امیر المومنین اتنے رسول کی شبیہ تھے کہ ہجرت کے بستر پہ سو گئے تو کفار کو پتہ نہیں چلا کہ محمد سوئے ہیں یا علی سوئے۔ یہ واقعہ تو آپ نے ہزاروں دفعہ خطبہ سے، ذاکرین سے اور علماء سے سن رکھا ہے کہ شب ہجرت بستر پیغمبر پہ علی سو گئے اور کفار کو پتہ ہی نہ چلا کہ مصطفیٰ سوئے ہوئے یا علی سوئے۔ اس قدر تشبیہ کے باوجود اسے شبیہ پیغمبر انہیں نہیں کہا گیا، بلکہ ایک دفعہ جناب سلمان محمدی آئے اور رسالت مآب سے کہا کہ آپ کی ایک حدیث ہے، یا علی انت منی و انا منک، اے علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ فرمایا ہاں بے شک یہ میری حدیث ہے۔ جناب سلمان محمدی نے کہا مجھے معرفت پہ یقین ہے، مجھے آپ کے ایک ایک لفظ پہ یقین ہے، لیکن یہ حدیث آگے احباب تک پہنچانے کے لیے اس کی عملی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی آپ سے کیسے ہے، جبکہ علی آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپ اپنی اولاد میں سے اپنے بیٹے کو تو کہہ سکتے تھے کہ یہ مجھ میں سے ہے، لیکن اپنے چچا زاد بھائی کے لیے، اپنے داماد کے لیے یہ لفظ کہہ دینا کہ علی مجھ سے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتاب کہتی اتنا جملہ کہنا تھا، یا رسالت مآب نے فرمایا علی ذرا میرے قریب آؤ، علی قریب آئے۔ سلمان محمدی یوں سامنے جیسے ایک شخص آئینہ دیکھتا ہے ویسے پیغمبر اور علی کو دیکھ رہے تھے۔ رسالت مآب نے علی کو قریب بلاتے بلاتے اتنا قریب بلا لیا کہ خود جناب سلمان محمدی کہتے ہیں کہ میں نے جبین رسالت
मोहम्मद को जबीन इमामत के साथ मुतमिक होता देखा, यूं रिसालत माब की जबीन इमामत की जबीन के साथ टकराई। सलमान मोहम्मदी कहता अभी मेरे दो चेहरे नजर आ रहे थे, या थोड़ी देर के बाद अली और मोहम्मद आपस में इस तरह मिल गए कि मुझे एक चेहरे में कभी अली नजर आ रहा था, कभी मोहम्मद नजर आ रहा था, कभी मुर्तजा नजर आ रहा था। ये सलमान मोहम्मदी कहते मैंने बंद आंखों को खोल के कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके चेहरे से कभी अली नजर आता है, कभी अली के चेहरे से मोहम्मद नजर आता है। फरमाए सलमान हर आंख ऐसे नहीं देख सकती, सिर्फ तुझे बताना चाहता था, इसे कहते हैं या अली अंत मिन्नी व अना मिनका। अली तो मुझसे, मैं तुझसे। जो अली इतना करीब था रसूल के, उसके लिए शबीह पैगंबर का लफ्ज नहीं आया। या तो आप बताइए कि आपने कभी जनाब अमीर अल मोमिनीन के साथ ये लफ्ज सुना हो, जबकि वो नफ्स पैगंबर है, अक्स पैगंबर है, लेकिन शबीह पैगंबर नहीं। अब आपके अकीदों पे तो मुझे यकीन है, तो आपकी सवातों पे भी यकीन है, अली शबीह पैगंबर नहीं है, क्योंकि अली के चेहरे पे अक्स तौहीद नजर आता है। अली का चेहरा वजह पैगंबर नहीं, अली का चेहरा वजहुल्ला है, अली की आंखें ऐनुल्ला है, अली की जुबान लिसानुल्ला है। अली ने अल्लाह की अक्स को अपने चेहरे पे सजा लिया। खुदा ने कहा कि मैंने अपना अक्स बना के तो मुस्तफा के पास अली भेजा हुआ है, अब मुझे हुसैन को क्या देना पड़ेगा, क्योंकि फिर दोबारा अली तो नहीं भेज सकता। फिर खुदा ने क्या मुंतखब किया, नाम अली रखा, चेहरा मोहम्मद का सजा दिया। इसमें अली के ऊपर जब आज की शब के लिए इससे बेहतर जुमला जो है वो मेरे कूज़ा मारिफत में नहीं है, बहुत बेहतरीन अहले जुबान के लिए जुमला इस्तेमाल करने लगा हूं कि जब इसमें अली पे चेहरा मुस्तफा ढांप दिया जाए तो उसे अकबर कहते हैं। शबीह पैगंबर है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद किताबें कहती हैं कि सरकारे हजरत इमाम हुसैन करीम करबला रिसालत माब की जुदाई में रोया करते थे, और रोने के बाद कब्र रसूल पे जाके कहते थे कि नाना तेरे फुराक में हुसैन इतना बेचैन है कि हुसैन चाहता है कि आप फिर मेरे घर में आए। शायद आपने लफ्ज सरों के ऊपर से गुजार दिया, मैं लफ्ज दोहराने लगा हूं। नाना के जाने के बाद रसूल की कब्र पे जाके हुसैन कहते थे नाना मैं चाहता हूं कि आप फिर आए। क्या दुआए हुसैन ऐसी कबूल हुई कि 11 शबान को चेहरा मुस्तफा ढांप के नाम अली अकबर की सूरत में हुसैन के घर में जाहिर हुए। अब रिसालत माब को ज़ाहरी तौर पे दुनिया छोड़े हुए एक अरसा हो चुका है, और जब 11 शाबान की याद की शब इमाम हुसैन के घर में शहजादा अली अकबर आए तो सरकार हजरत अबुल फजल अब्बास की तरफ मौला हुसैन ने देखा, मौला अब्बास की तरफ देखा। बल्कि मैं लफ्ज तब्दील करने लगा हूं, और आज का जश्न है और ईद के मौके में मेरा ख्याल इससे बेहतर जुमला और कोई नहीं होगा। अली को गोद में लेके फिर हुसैन ने दूसरे अली को देखा। क्यों अकबर को गोद में उठा के अबुल फजल अब्बास की तरफ देखा और अबुल फजल अब्बास की तरफ देख के कहा या अबुल फजल अब्बास मदीने की गलियों में जाके ऐलान कर दो जिसने मोहम्मद का बचपन देखना हो आज हुसैन के घर में आ जाए। क्योंकि मदीने में अक्सर लोग आके करीब करबला से कहते थे कि हमने जब कलमा पढ़ा
तो हम थोड़ा अर्सा रसूल के साथ रहे। या कोई कहता था मैंने रसूल के जाने के बाद रसूल का कलमा पढ़ा, कोई कहता था कि मैंने कलमा तो मुस्तफा का पढ़ लिया था लेकिन जब मदीना पहुंचा तो रसूल दुनिया से जा चुके थे। ए मौला हुसैन, आप बता सकते हैं आपके नाना का चेहरा कैसा था, आपके नाना की आंखें कैसी थी, जब रसूल बोलते थे तो कैसे लगते थे, जब रसूल चलते थे तो कैसे लगते थे, रसूल हाथों को हरकत कैसे देते थे, रिसालत का तबस्सुम कैसा था, रसूल का बोलना कैसा था। करीम करबला ने कहा जाओ अबुल फजल अब्बास, उन लोगों से कह दो जो मुस्तफा का चेहरा देखने के आशिक थे, अगर तुमने दोबारा मुस्तफा देखना हो तो आओ आज हुसैन इब्ने अली के घर फिर मोहम्मद की सूरत बन के अली अकबर आ गए। मदीना की गलियों में रश हो गया, गलियां भर गई, चेहरा अली अकबर की ज़ियारत के लिए लोग आ गए। और यहां मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि शहजादा अली अकबर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, खतीबाना जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं कि शहजादा अली अकबर को अकबर लफ्ज कब मिला था। अब माशाल्लाह इतनी अरबी तो आप भी जानते होंगे, अकबर कहते हैं बड़े को। बेशक। अगर अली अकबर बड़ा अली है तो ये ज़ैनुल आबिदीन क्यों नहीं? क्योंकि हुसैन के घर में अली अकबर जनाब ज़ैनुल आबिदीन है। इनके लिए अली औसत कहा जा सकता है, दरमियान वाला अली। लेकिन इनके लिए अली अकबर क्यों कहा गया? अली अकबर लकब मौला ज़ैनुल आबिदीन का क्यों नहीं? मौला अली सबसे पहले अली हुसैन के घर में ज़ैनुल आबिदीन है, उन्हें अकबर कहना चाहिए था, इन्हें औसत कहना चाहिए था, फिर सबसे छोटे शहजादे को असगर कहना चाहिए था। लेकिन ये शहजादा आया दरमियान में है, कहलवाता अकबर। जब मैंने अपनी खतीबाना बयानदारी के साथ कुतब का मुतालिया किया तो कुतब से पता चला कि रसूल के बेटे हुसैन इब्ने अली ने इनके नाम के साथ अकबर नहीं रखा था, ये अली कहते थे, अली इब्न हुसैन इन्हें कहा जाता था। अब भी जब ज़ियारत पढ़ी जाती है तो इनके नाम के साथ अली इब्न हुसैन कहा जाता है। कहना शुरू किया था। दो तरह की रवायात मिलती हैं। एक रवायत ये मिलती है कि जब भी शहजादा अली अकबर मदीना की गलियों में चेहरे पे नकाब लेके निकलते थे, वही मैदान में जाके या बाजार में जाके अब चेहरे से नकाब को उतारते थे तो लोग पिछले कदम चलते हुए कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोग पिछले कदम पलटते थे और पलटते हुए कहते थे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहजादा अली अकबर को देखने के लिए, ज़ियारत के लिए मदीना की गलियों में रश हो गया। इतनी भर गई मदीने की गलियां कि लोग आज इंतजार में थे कि आज हमें रसूल का बचपन देखना है। कोई कहता था आज मुझे रसूल की सीरत देखनी है, मुझे रसूल की सूरत देखनी है, मुझे रसूल का चेहरा देखना है, मुझे रसूल की आंखें देखनी है। सिर्फ मदीना के लोग नहीं थे, हिजाज के लोग पूरे मदीना में आ गए। अब मुझे इस बात की खबर नहीं है कि ये पूरे हिजाज में बात किसने मशहूर की थी कि हुसैन के घर में अकबर आ गए, लेकिन गलियों में रश था। लोग शहजादा अली अकबर, क्योंकि आज की रात का ये जश्न है तो आज की शब में ही आप इसका लुत्फ लेंगे। शहजादा अली अकबर का चेहरा देखने की मदीने की गलियों में रश। अब इसकी बेहतरीन इस वाक़े की जो नज़म की सूरत में तखय्युल पेश किया वो मीर अनीस ने किया। मीर अनीस फरमाते हैं कि शहजादा अली अकबर को गोद में लेके हुसैन इब्ने अली ने कहा कि अब्बास, मदीने की गलियों में ऐलान करो कि जिसने अकबर देखना है कल मस्जिद में आए। कल मस्जिद में आए, मैं अकबर की रूनुमाई मस्जिद में करवाऊंगा। अब एक लम्हे के लिए मुझे अपनी समाते उधार दीजिएगा, मैं मबद्दत अली अकबर से मुज़य्यन करके आपको वापस लौटाने लगा हूं। रिसालते माँ का चेहरा जिसने देखना हो वो मस्जिद में आए।
इसमें कोई शक नहीं है। तमाम उलमा ने भी इसे यूं ही लिखा, मीर अनीस ने भी यूं ही लिखा, जिसने नज़म में लिखा उसने भी यूं ही लिखा, जिसने नसर में लिखा उसने भी यूं ही लिखा कि सरकार करीम करबला ने कहा कि जिसने रसूल का चेहरा देखना हो, जिसने अकबर की जियारत करनी हो, वो मस्जिद में आए। मैं मस्जिद में अपने बेटे अली के चेहरे की जियारत करवाऊंगा। या मेरे मौला करीम करबला, ए मेरे शहनशाह करबला, इससे पहले अली ज़ैनुल आबिदीन आए थे, आपने जियारत अपने घर में करवाई थी। इससे पहले आपके घर में जब भी कोई शहजादा आया है उसकी जियारत घर में हुई है। पहली बार आपके घर में ये रीत, ये रवाज पड़ रहा है कि आपने करवानी बेटे की जियारत है, इंतखाब मस्जिद का हो रहा है, दिखाना अली अकबर का चेहरा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मस्जिद में आओ। मस्जिद में आपने अली अकबर का चेहरा क्यों दिखाया? फरमाया मैं जमाने को बताना चाहता हूँ कि लोग मस्जिद में आते हैं अल्लाह से मिलने के लिए, लोग मस्जिद में आते हैं अल्लाह से मुलाकात के लिए। मैं मस्जिद में अकबर के चेहरे से निकाब उठा के कहूंगा, अल्लाह अकबर के घर में मैं तुम्हें अकबर दिखा रहा हूं। क्या था वो चेहरा? सामने ग्रामीण कदर क्या था वो शहजादा? कितना बाकमाल था मेरा शहजादा, कितना बाकमाल था मेरा शहनशाह, जिसके चेहरे की जियारत के लिए अल्लाह के घर का इंतखाब किया गया। अल्लाह के घर का इंतखाब, अल्लाह के घर का इंतखाब। जिस जुमले के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं वो जुमला मैं अभी देने लगा हूं, अल्लाह के घर का इंतखाब। ऐ मेरे मौला हुसैन, आपने बेटे का चेहरा दिखाना है, आप मोहल्ला बनी हाशिम में दिखा दें, आप दरवाजे में दिखा दें, आप लोगों को मस्जिद में बुला रहे हैं अली अकबर का चेहरा दिखाने के लिए। फरमाया क्या करूं, कानून कुदरत है, हर दौर का अली अल्लाह ही के घर में आता है। समझा नहीं, अली का चेहरा दिखाने के लिए अल्लाह के घर का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि इससे पहले जो अली आया था उसको मोहम्मद ने 16 रजब को अल्लाह के घर में हाथों पे उठा के दिखाया था। आज मैं 11 शबान को मोहम्मद बन के अकबर हाथों में उठा के कहूंगा कि उस मोहम्मद ने वो अली दिखाया था, ये मोहम्मद ये अली दिखा रहा। मस्जिद में लोगों का रश हो गया। सिर्फ आज की रात की आमद पढ़ने लगा हूं शहजादे की। मस्जिद में लोगों का रश, भीड़, और इतनी इज्जो इनकसारी से आज मांगी गई, यकीन के साथ कि आपको मिलेगा। मैं इमाम हुसैन की अता दिखाने लगा हूं। किताबें कहती हैं कि जब शहजादा अली अकबर का चेहरा दिखाना था मदीने के लोगों को, तो करीम करबला ने क्या किया था? करीम करबला ने मस्जिद में नौकरों को बुला के, किसी के सर पे तज था और उस पे जवाहरात थे, किसी नौकर के सर पे थाल था तो उसमें जमुर थे, किसी नौकर के सर पे थाल था तो उस पर यकूत थे। हुसैन इब्ने अली एक एक शख्स को बुलाते थे, अकबर के चेहरे की जियारत करवाते थे। जियारत करवाने के बाद वो शख्स जाने लगता, हुसैन उसे जो चाहिए होता, या जवाहरात या दिनार या दिरहम या यकूत या जमुर्द, मुट्ठी भर के उसके हाथों में डाल के कहते, देखने अकबर को आया था, जा खाली हाथ रहा है। एक एक शख्स आता रहा, हुसैन बांटते रहे, एक एक शख्स आता रहा, हुसैन बांटते रहे। मैंने ये वाकया किस लिए मुंतखब किया, इसमें एक बात सुनाने लगा। या एक बदवी आया, बदवी उसे वो कहते हैं कि जो आबादियों से बाहर रहते हो, यानी कि वो लिबास बदवी लिबास में था। वैसे लग रहा था ये शख्स मदनी नहीं है, ये मक्की नहीं है, ये मक्का और मदीना के बाहर मज़ाफात में रहने वाला कोई शख्स। किताबें कहती हैं कि ये कोई बदवी था, लेकिन कुछ उलमा ने लिखा है कि ये कौन था, लेकिन मैं कौन था वो बाद में बताऊंगा। पहले इससे जनाब अकबर की पहली मुलाकात सुनाता हूं। जब हर कोई आ रहा था कितार में और शहजादा अकबर के चेहरे की जियारत कर रहा था, जब ये शख्स आया, हुसैन ने मुट्ठी भरी जवाहिरात की। हुसैन ने कहा झोली फैला, तो मेरे बेटे अकबर को देखने आए। उसने हाथ पीछे करके कहा, आज खैरात नहीं लूंगा, आज करम लूंगा।
مجھے خیرات نہیں چاہیے، مجھے کرم چاہیے۔ اسے پتا تھا جو سامنے بیٹھا یہ صرف سخی نہیں، یہ کریم بھی ہے۔ اس نے کہا مجھے کرم دے۔ حسین کا منہ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا نہ سونا نہ چاندی، نہ ہیرے نہ جواہرات، نہ زمرد نہ یقوت، نہ درہم نہ دینار، نہ جائیداد۔ حسین ابن نے سر اٹھا کے کہا پھر چاہیے کیا؟ ہاتھوں کو بڑھا کے کہنے لگا محمد ذرا میرے ہاتھوں میں دے۔ میں اپنے ہاتھوں میں وقت کا محمد اٹھانا چاہتا ہوں۔ جب کہا نا میں اپنے ہاتھوں میں وقت کا محمد اٹھانا چاہتا ہوں، حسین نے سر سے لے کے پاؤں تک شخص کو دیکھا۔ شخص کو دیکھنے کے بعد حسین ابن علی نے فرمایا خضر نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اکبر نہ دیتا۔ شب بیت جائے اور شہزادے کے فضائل ختم نہ ہو، حسین ابن علی کی آواز آئی تو خضر نبی نہ ہوتا میں تجھے اکبر نہ دیتا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ میں محمد اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب بعد میں دھیمے لہجے میں کروں گا، لیکن وزن دیکھیے گا بات کا کتنا بڑا ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ حسین ابن علی کا ہے۔ کریم کا جملہ سنیے گا، فرمایا تو خضر نبی نہ ہوتا میں کبھی اکبر تیرے ہاتھوں میں نہ دیتا۔ فرمایا مولا پہچان لیا ہے تو پھر بتائیے کہ خضر دیکھ کے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ محمد گود میں لینے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ رحل امامت سے یوں رحل امامت سے حسن کا قرآن اٹھا کے رحل نبوت میں۔ علماء نے کیوں کہا کہ یہ کوئی بدو نہیں تھا؟ علماء نے کہا جو جملے اس نے کہے وہ جملے بتا رہے ہیں کہ یہ کون تھا۔ ہاتھوں میں یوں شہزادہ علی اکبر کو اٹھا کے خضر نبی نے جو اشعار پڑھے ان میں سے 2 اشعار پڑھنے لگا۔ خضر نبی نے یوں ہاتھوں میں شہزادہ علی اکبر کو اٹھایا، اٹھا کے شہزادہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا اے مصطفیٰ کا بچپن، اے اسم علی کے مالک، اے وہ جس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے اور جس کا نام علی جیسا ہے، جس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے، جس کا نام علی جیسا ہے۔ اگلا جملہ میں روک رہا ہوں کہ شاید کوئی ذہن ایسا نہ ہو جو دائیں بائیں ہو اور شہزادے کی فضیلت کا جملہ وہ ضائع کر دے۔ خضر نبی نے فرمایا اے وہ جس کا چہرہ مصطفیٰ جیسا ہے اور جس کا نام علی جیسا ہے۔ یہ کہنے کے بعد شہزادہ علی اکبر کے چہرے سے نقاب کو ہٹانے کے بعد آواز دے کے کہنے لگا اگر تمہیں ملائکہ دیکھ لیتے تو آدم سے پہلے تجھے سجدہ کر دیتے۔ اگر تجھے ملائکہ دیکھ لیتے تو آدم سے پہلے وہ تجھے سجدہ کر دیتے۔ اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں، شعر کا وزن کیجئے گا۔ خضر نبی نے شہزادہ علی اکبر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اگر ملائکہ تجھے دیکھ لیتے تو آدم سے پہلے تجھے سجدہ کر دیتے۔ دوسرا شعر سنیے گا اور اپنے دلوں کی پوری حرارت اکٹھی کر کے شہزادہ علی اکبر کے آنے کی خوشی کریم کربلا کو پہنچائیے گا۔ یوں ہاتھوں میں اٹھا کے خضر نبی کی آواز آئی اگر ملائکہ تجھے دیکھ لیتے تو آدم سے پہلے تجھے سجدہ کر دیتے۔ یہ کہنے کے بعد خضر نبی کی آواز آئی اگر اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب نبی کا۔ فرمایا اگر اسرائیل کا بیٹا یوسف تجھے دیکھ لیتا تو وہ قبر میں بھی اپنی انگلیاں کاٹ لیتا۔
जिसे देख के मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काटें उसे यूसुफ कहते हैं, जिसे देख के यूसुफ अपने हाथ काट ले उसे अली अकबर कहते हैं। और अगला राज शहजादा अली अकबर के आने का पढ़ने लगा हूं कि हर नबी ने चाहा कि मैं जन्नत खरीदूं, उससे खरीदी न गई। खुदा ने जन्नत की कीमत इतनी रखी थी कि नबी इम्तिहान देते गए लेकिन जन्नत खरीदी न गई। हुसैन इब्ने अली ने एक शहर सजाया जिसका नाम जमीन पे करबला है, अर्श वाले उसे जन्नत कहते हैं। अब मैं बिल्कुल मार्फत वाला जुमला कहने लगा हूं, इससे अब मुझे दाद की तवक्को नहीं है, लेकिन ये मेरी दिल से दुआ है एक मुकद्दस जगह पे बैठे हुए कि मेरा मालिक किसी एक दिल में वो कीमत पैदा कर दे, किसी एक दिल में आज की शब में वो बात पहुंचा सकूं। हर नबी की ख्वाहिश थी कि मैं जन्नत खरीदूं, लेकिन हर नबी ने ख्वाहिश की लेकिन उससे जन्नत खरीदी नहीं गई। हुसैन इब्ने अली ने एक शहर बनाया था जिसे जमीन वाले करबला कहते हैं, अर्श वाले उसे जन्नत कहते हैं, जिस पे जमीन वाले जाने की ख्वाहिश करें उसे जन्नत कहते हैं, जन्नत में रहने वाले जिस पे उतरने की ख्वाहिश करें उसे करबला कहते हैं, जमीन वाले जिसे अपना लालच समझे उसे जन्नत कहते हैं, जन्नत वाले जिसे अपना आखिरी मुकाम समझे उसे करबला कहते हैं, जहां अंबिया आते हों, जहां मलाइका तवाफ करते हों उसे अर्श वालों की जन्नत कहते हैं। वो करबला जिसे जमीन वाले कहते हैं ये एक जंगल था, ये एक सहरा था, यहाँ रेत के टीले थे और हुसैन इब्ने अली ने ये जगह खरीदी थी। हुसैन ने ये जगह नहीं खरीदी थी, हुसैन ने जमीन का एक टुकड़ा जन्नत बना के जमीन वालों के लिए नहीं अर्श वालों के लिए सजाना था, जहां अर्श वाले आने की तमन्ना करते। फिर आपने सारी जिंदगी उलमा से सुना है कि हुसैन इब्ने अली ने वो जो जन्नत का टुकड़ा खरीदा था, हुसैन इब्ने अली ने अपने नाम नहीं रखा था, ज़ैनुल आबिदीन के नाम नहीं रखा था, हुसैन ने वो जन्नत का टुकड़ा जिसे करबला कहते हैं हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के नाम कर दिया था, जिसे आज भी जगीरे अली अकबर कहते हैं। हुसैन ने जमीन पे अर्श वालों की जन्नत सजा के अकबर के नाम करके जमाने को बता दिया था जो उस जन्नत में जाने की ख्वाहिश करे उसे हुसैन की सिफारत चाहिए, और अगर कोई अर्श से इस जन्नत में आना चाहे तो उसे अली अकबर की सिफारत चाहिए। और आज भी वो जन्नत जिसने खरीदी हुई है उसे अली अकबर कहते हैं, आज भी वो जन्नत जिसके नाम है उसे अली अकबर कहते हैं, क्योंकि ये दो शहजादों का जश्न है, एक हसन का शहजादा एक हुसैन का शहजादा। यानी कि सरकारे इमाम हसन शहनशाह वो मेरे वो इमाम हैं जिससे अमीर कहा जाता है। उस शहजादे को अमीर कहा जाता है, अमीर हसन, हसन मुजतबा। अमीर हसन जिसे अमीर कह के बुलाए उसे कासिम कहते हैं। मैं लफ्ज तब्दील करता हूं, शायद आपकी समाअत है उसे कबूल कर ले। अमीर अल मोमिनीन के घर में जो दूसरा अमीर हो उसे कासिम कहते हैं। ये वो मेरा 13 साल का बादशाह है जिसने 10 मुहर्रम को मलाउन के खैमे की पुष्ट पे जाके नेजा मार के कहा था, तू क्या कहता है कि मेरे बाबा को जंग करनी नहीं आती थी। शहजादा कासिम की जंग की आज भी करबला गवाह है कि करबला में लड़ा तो हर कोई अपने अंदाज से था, लेकिन जैसे जंग हसन का बेटा करके गया, क्योंकि ये तारीख के मुअर्रख ने बहुत बड़ा बहतान बांधा है
کہ मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हैं उन्हें माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जंग करना नहीं वो जानते थे। इतने बहादुर थे हसन, इतने बड़े शुजा थे हसन, जंग करने के इतने माहिर थे हसन के मैं उनके लिए अब अगर लंबा बोलूंगा तो मेरा ख्याल है कि मुझे जंग सफीन में जनाब हसन का हमला पढ़ना चाहिए, मुझे जंग सफीन में मौला हसन की करामात पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि पूरी मौला इमाम हसन की जिंदगी की शुजात तुझे एक जुमले में बंद करके सुनानी है तो मेरा ख्याल है जितने इस बारगाह में बैठे हुए हैं या जितने इस जश्न को लाइव सुन रहे हैं, इससे बेहतर जुमला मेरे कूज़ाए इरफान में नहीं है मौला हसन की शुजात पढ़ने के लिए कि मैं एक जुमले में अगर हसन की शुजात पढ़ूं तो वो एक जुमला ये है कि जिसका शागिर्द अब्बास हो उसे हसन कहते जंग सफीन में जंग सफीन में मौला अब्बास को हमला तैयार करके जिसने भेजा था उसे जनाब हसन कहते हैं। और किताब के जुमले हैं कि मौला इमाम अमीर अल मोमिनीन ने जंग सफीन में अपने बेटों के लश्कर बनाए थे, अपने बेटों में कुछ को तीरंदाजी में रखा था, कुछ को पीछे रखा था। तो मोहम्मद बिन हनफिया को मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि मोहम्मद तू हमला करने के लिए जा। जब मोहम्मद बिन हनफिया जंग सफीन में हमला करने के लिए घोड़े पे बैठ के जब आए तो सामने से 80,000 तीरंदाजों ने इकट्ठा तीर छोड़ दिया। 80,000 तीर जब यूं कमानों से निकले तो एक दफा सामने से यूं तीरों की मूसलाधार बारिश आई। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने घोड़े को रोक लिया, सामने से आते हुए तीरों को देखे मोहम्मद बिन हनफिया हटे नहीं, मोहम्मद बिन हनफिया पलटे नहीं, मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने कदम नहीं हटाए, सिर्फ अपने घोड़े के अगले सुम्मों को रोका। मोहम्मद बिन हनफिया का अपने घोड़े के सुम्मों को रोकना था कि मोहम्मद के घोड़े की तेजी से करीब से ऐसे बिजली की तरह कोई घोड़ा सवार निकला और 80,000 तीरंदाजों के अंदर घुस गया। मोहम्मद बिन हनफिया ने अपनी आंखों को खोल के देखा तो जनाब हसन जा रहे थे। जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने अपना चेहरा नीचे किया, चेहरे का नीचे करना था। अली इब्न अबी तालिब ने आके मोहम्मद बिन हनफिया के कांधे पे हाथ मार के कहा कि तू शर्मिंदा क्यों हो रहा है, तुझ में उसमें कोई फर्क नहीं, तू अली का बेटा है, वो मोहम्मद का बेटा है। जिसने हसन वाली शुजात करबला में ज़ाहिर की उसे कासिम कहते हैं। और आज मैं आपसे भाई बेटा बन के गुजारिश करूंगा कि आज इस अंदाज से मांगिएगा कि आज करीमैन के घर में आप खुशी मना रहे हैं। बेशक, क्या कहने। किसी अमीर के घर में तो एक बेटा आए तो वो इतना नवाज देता है, आज तो करीमैन के घर की खुशी है। आज शहजादी ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा खुश है, खुश है, आज वलीउल असर खुश है। मेरी पाक बारगाह में बैठ के आप तमाम के लिए दुआ है, मेरा मालिक जितने आप बैठे हुए हैं आपको सिवाय अहले बैत के दर के किसी का मोहताज ना करे। मेरा मालिक आपको इतना अता फरमाए, इतना अता फरमाए कि आपकी नस्लें भी किसी की मोहताज ना हो। मौला आपको अपनी मारिफत अता फरमाए, अपनी मवद्दत अता फरमाए, अपनी मोहब्बत अता फरमाए। जो मोमिनीन अलील हैं आज की शब मेरा मालिक उनके मुकद्दर में शिफा लिखते। जो एक मोमना मखसूस जिनके लिए इंतजार शाह जी ने हुक्म दिया हुआ है, मेरा मालिक सैयद उम्मे रुबाब गालिबन उनका नाम है, मेरा मालिक उन्हें मुकम्मल सेहत अता फरमाए। जो परेशान हाल है परेशानियों को दूर फरमाए। सैयद इंतजार शाह साहब के रिज्क, इज्जत, सेहत, वक्त में इजाफा फरमाए। आप तमाम की तौफीकात में इजाफा फरमाए। आप मेरे लिए दुआ फरमाइएगा, मैं आप तमाम के लिए दुआ गो हूँ और हम मिल के दुआ करते हैं। मेरा मालिक हमें वलीउल असर की ज़ियारत नसीब फरमाए, नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ दुआ। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सब एक्सपेक्ट करेंगे कुछ और